اصولی طور پر آئینی عدالت کے حق میں ہے۔ میثاق جمہوریت میں آئینی عدالت کا ذکر ہے۔ پیپلز پارٹی کی سی ای سی اجلاس کے بعد بلاول بھٹو کی نیوز کانفرنس، کہا این ایف سی ایوارڈ میں ترمیم کی تجویز پر تحفظات ہیں۔ ججز کے ٹرانسفر پر پیپلز پارٹی نے اپنی تجویز تیار کی ہے۔ دوہری شہریت کے معاملے پر پیپلز پارٹی مجوزہ ترمیم کی حمایت نہیں کر سکتی۔ دیکھیں گے مزید کن نکات پر اتفاق ہو سکتا ہے۔ اب تک کوئی مسودہ اس حوالے سے منظر عام پہ نہیں آیا حکومت کی طرف سے، تو ہم ان کی جزیات پر تو بحث نہیں کر سکتے۔ اصولی طور پر یہ بات واضح ہے کہ 26ویں ترمیم سے دستبردار ہونے والے نکات پر اگر دوبارہ 27ویں ترمیم میں کوئی چیز لائی گئی تو یہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ 27ویں ترمیم کا مسودہ سامنے نہیں آیا، کوئی چیز سامنے آئے گی تو بات کریں گے۔ 26ویں ترمیم میں حکومت 35 شقوں سے دستبردار ہوئی تھی۔ 26ویں ترمیم سے نکالی گئی شقیں شامل کی گئیں تو قبول نہیں کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، کہا صوبوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے تو بھرپور مخالفت کریں گے۔ کھینچ تان کر 2/3 اکثریت حاصل کی جا رہی ہے، اس کا نقصان ہوگا۔ ستائیسویں آئینی ترمیم پر حکومت کی اتفاق رائے کی کوشش، آئینی ترمیم آج سینٹ میں پیش نہیں کی جا سکی۔ وفاقی کابینہ وزیر اعظم شہباز شریف کے غیر ملکی دورے سے وطن واپسی پر مسودے کی منظوری دے گی۔ ترمیم کا مسودہ پیر یا منگل سینٹ میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ حکومت کا اتفاق رائے سے جلد آئینی ترمیم لانے کا دعویٰ، اپوزیشن نے بھی ترمیم کی مخالفت کی حکمت عملی تیار کر دی۔ لگتا ہے پیپلز پارٹی 27ویں ترمیم پر مکمکا کے موڈ میں ہے، کچھ ترامیم تسلیم کرے گی اور کچھ کو مسترد کرے گی۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا بیان، کہا بلاول بھٹو کے نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو اور والدہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جمہوریت کے لیے گراں قدر خدمات تاریخ کا روشن باب ہے۔ پیپلز پارٹی نے 27ویں ترمیم مکمل مسترد کر دی تو یہ اس کی عوامی سیاست میں حقیقی واپسی ثابت ہوگی۔ آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں، اسے مکمل نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت 27ویں ترمیم کر کے اپنی مرضی کے جج تعینات کرنا چاہتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مردان ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سے خطاب، کہا انصاف اور آئین کو چلنے کے لیے چن کر لائے گئے افراد کو پارلیمنٹ میں بٹھایا گیا ہے۔ 26ویں ترمیم کر کے پہلے ہی آئین کی روح کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ 27ویں ترمیم عدلیہ کی آزادی پر ایک اور حملہ ہے۔ حکومت کا آئینی ترمیم کے تحت آئینی عدالت قائم کرنے کا فیصلہ، مجوزہ آئینی عدالت میں ابتدائی طور پر 7 ججز ہوں گے۔ آئینی عدالت کے ججز کے ریٹائرمنٹ کی عمر 68 برس ہوگی۔ یہ حد سپریم کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر سے 3 سال زیادہ ہے۔ مجوزہ 27ویں ترمیم کے خد و خال سامنے آ گئے۔ ذرائع کے مطابق آئینی عدالت کے 7 ججز میں سے 5 کو موجودہ سپریم کورٹ بینچ سے منتخب کیا جائے گا۔ آئینی عدالت صرف آئینی معاملات سے متعلق درخواستوں کی سماعت کرے گی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں بھی مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کا تذکرہ۔ سول سروس رول سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ میری درخواست ہے کہ کیس کا آج فیصلہ کیا جائے۔ میں وفاقی شرعی عدالت کی بلڈنگ میں کیس پر دلائل نہیں دینا چاہتا۔ وکیل فیصل صدیقی کی بات پر آئینی بینچ کے ججز مسکرا دیے۔ عمارت کے تبدیل ہونے سے اختیارات کم نہیں ہوں گے، جسٹس جمال بندوخیل کے ریمارکس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی باکو میں آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات، آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود۔ دونوں رہنماؤں کا سیاسی، تجارت اور سرمایہ کاری، توانائی، روابط اور دفاع کے شعبوں میں کثیر الجہتی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے آذربائیجان کے یوم فتح کی تقریب میں شرکت کی دعوت پر آذربائیجان کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔ آزاد کشمیر میں مذاکرات کے دوران جعلی خبریں سوشل میڈیا پر پھیلائی گئیں۔ پرانی ویڈیوز کو ڈرامائی انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔
वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा आवाम जाली और एडिट शुदा वीडियोज़ पर यकीन न करें। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि तासुर दिया जा रहा है कि पुलिस कश्मीरियों पर जुल्म कर रही है। नौजवान नस्ल तस्दीक के बगैर सोशल मीडिया पर मवाद शेयर न करे। दुश्मन झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को फंडिंग कर रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। इस्तांबुल मुज़ाकरात में सालिसों की जानिब से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद। पाकिस्तानी वफ़द ने सालिसों को शवाहिद पर मबनी जायज़ और मंतकी मुतालबात पेश किए, जिनका वाहिद मकसद सरहद पार दहशतगर्दी का खात्मा है। सोशल मीडिया पर बिलखुसूस अफगान अकाउंट से गर्दिश करने वाली दीगर इत्तलात महज क़यास आराइयाँ करार। हमारी ज़रूरत है, अफगानिस्तान की भी ज़रूरत है, हमारी भी ज़रूरत है और इस रीजन की, इस खत्ते की भी ज़रूरत है कि अमन कायम हो, ताकि कोई यहाँ पे तजारत हो, कोई कनेक्टिविटी हो। ये सारी चीज़ें ये इस खत्ते की खुशहाली के लिए एक बड़ी लाजम चीज़ है। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अगर चीज़ें जो हैं जो भी वो गारंटीज़ दे रहे हैं, ज़बानी गारंटीज़ जो दे रहे हैं, अगर वो इन राइटिंग और एक मुआहदे का हिस्सा बन जाती है तो बिस्मिल्लाह। पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की और इस खत्ते की ज़रूरत है कि अमन कायम हो। अमन दोनों ममालिक और खत्ते के लिए बहुत अच्छा होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा तिजारत और खुशहाली चाहते हैं, हमें अक़वाम मुत्तहिदा समेत किसी की हिदायत की ज़रूरत नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा गिरफ्तार। अदालत के हुक्म पर फैसलाबाद जेल मुंतकिल कर दिया गया। रवां साल 31 जुलाई को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के केस में हामिद रजा को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। सदर ANP एमल वली खान ने खैबर पख्तूनख्वा की बदतरीन गवर्नेंस का पोल खोल दिया। एक्स पर बयान में एमल वली खान ने कहा कि पख्तूनख्वा 12 साल से कंप्रोमाइज सूरत हाल से गुजर रहा है। दहशतगर्दी, बदअमनी और तालिबानाइजेशन जैसे मसाइल हैं, लेकिन वज़ीर आला को बानी PTI की रिहाई के अलावा कोई फिक्र नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नजर ही नहीं आ रही। कुछ लोगों को कौम से इश्क होता है, कुछ को रियासत और रियासती इदारों से। अब एक नई नस्ल आ गई है जिसको बानी PTI से इश्क है। उनको न कौम की परवाह है न मुल्क की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मसाजिद से मुताल्लिक गुफ्तगू इंतहाई गुमराह कुन है। सोहेल आफरीदी के बयान पर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी की मजम्मत। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ख़राब करने की कोशिश है। सियासी मुखालफत में इस हद तक न जाएं जिससे मुल्क, कौम और फ़ौज का वक़ार मजरूह हो। पाक फ़ौज मसाजिद और मदारिस के महाफ़िज़ है जो कभी गैर महफूज नहीं होंगे। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दरमियान 2 अहम मुआहदों पर दस्तखत। फैकल्टी और तलबा के तबादले और तहकीक के लिए 7 लाख अमरीकी डॉलर मुख्तस। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की तकरीब में खुसूसी शिरकत। कहा कामयाबी मुआहदों से नहीं नताइज से नापी जाएगी। इश्तराक से पाकिस्तानी जामियात को बैनुल अक़वामी सरमायाकार इदारों से जोड़ा जाएगा। कराची के इलाके औरंगी टाउन में 2 डकैत अवाम के हत्थे चढ़ गए। मुश्तइल शहरियों ने दोनों डाकुओं को तशद्दुद का निशाना बनाया। मोटरसाइकिल को आग लगा दी। पुलिस मौके पर पहुंची, मुलजमान को हुजूम से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया। खैरपुर में मेहरान हाईवे पर कोट लालू के मकाम पर हादसे में 4 अफराद जान से गए। तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। जाँ बहक होने वालों में मां और 3 बच्चे शामिल। खानदान का सरबराह जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। घोटकी के इलाके रोंती में दूसरे रोज पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग के तबादले में 9 डाकू मारे गए। 6 डाकुओं की लाशें तहसील अस्पताल ओबाड़ो मुंतकिल कर दी गई।
मुजफ्फरगढ़ में भीख न मांगने पर 3 बच्चियों को ज़िबा करने की कोशिश, 2 जख्मी बच्चियां अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम 3 बच्चियों को मुल्तान से भीख मंगवाने के लिए लाया और भीख न मांगने पर मुलजिम ने शाजिया और काजल को टोके के वार करके कत्ल करने की कोशिश की। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके टोका बरामद कर लिया। कराची में कीमाड़ी बाचा खान रोड के करीब फोम की फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद, इमदादी कार्रवाइयां जारी। फैसलाबाद में ससुरालियों ने बच्चे छीनकर खातून को घर से निकाल दिया। फातिमा से 2 साल का अहद और 4 माह का फहद अली छीन लिया। विमेन पुलिस ने दोनों बच्चों को बाजियाब करवाकर वहां के हवाले कर दिया। कराची में कोरंगी भिटाई कॉलोनी में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, इलाका मकीनों का क़य्युमाबाद में के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर धरना, लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालिबा। मुजाहिरीन का कहना है कि के इलेक्ट्रिक अमले ने बिजली चोरी का बहाना बनाया। भिटाई कॉलोनी में केबल वायरिंग है, बिजली चोरी का इल्जाम बेबुनियाद है। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र में इजाफा, अक्टूबर 2025 के दौरान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने $3.4 अरब मुल्क भिजवाए। तरसीलात में साल ब साल 11.9% तक इजाफा हुआ। स्टेट बैंक ने तरसीलात ज़र की तफसीलात जारी कर दी। तरसीलात ज़्यादातर अमरीका, अरब इमारात, बरतानिया और सऊदी अरब में भेजी गईं। जुलाई से अक्टूबर के दौरान मजमूई तौर पर $13 अरब मसूल हुए, जो गुज़श्ता माली साल की निस्बत 9.3% ज़ायद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक्टूबर की तरसीलात ज़र में इजाफे पर समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र में बतदरीज इजाफा समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने खून पसीने की कमाई से मुल्क व कौम की खिदमत में मसरूफ़ अमल और हमारा कीमती असासा है। सिंध भर में डेंगू के केसेस में इजाफा होने लगा। वायरस ने 24 घंटे में मजीद 4 जिंदगियां निगल लीं। सूबे में डेंगू से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 25 हो गई। 24 घंटे में सिंध में 1192 केसेस मुस्बत आए हैं। कराची में 641 और हैदराबाद में 550 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। रवा माह डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 4940 तक जा पहुंची। सुपर हीरोज़ के लिए वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी इक़दामात। मरियम नवाज़ स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज़म का क़याम। मोमिन खुसूसी सानिया आशिक की सरबराही में इजलास। दाखिलों और स्टाफ भर्ती के अमल के फौरी आगाज़ का जायज़ा। ऑटिस्टिक बच्चों को आलमी मयार की तालीम और थेरेपी बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। मुफ्त यूनिफॉर्म, लंच बॉक्स और फ्री पिक एंड ड्रॉप की सहूलत मिलेगी। स्कूल में ओपन जिम, सैंड थेरेपी, सेंसरी गार्डन और वॉकिंग ट्रैक भी दस्तयाब है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना पायदार तरक्की के दरवाजे खोलने की कुंजी है। दुनिया में सिनफी मसावात को फ़रोग़ देने, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिशों को सराहते हैं। खातून अव्वल आसमा भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, मोहतरमा फातिमा जिन्ना से लेकर शहीद बेनज़ीर भुट्टो तक ख़वातीन की पुरअज़्म क़यादत मैसर रही। मुमलिकत बहरीन की क़यादत और इस बामानी इक़दाम को ख़िराज तहसीन पेश करती है। पाकिस्तान और ईरान ब्रादर इस्लामी ममालिक हैं। दोनों के दरमियान मजहबी और सकाफती गहरी मुमासलत है। वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी की ईरानी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और ईरान मिलकर अल्लामा इक़बाल का दिन मनाएंगे। मुसलसल 5 हफ्तों से बढ़ती हुई महंगाई की लहर को ब्रेक लग गई। हफ्तावार बुनियादों पर 1 माह के बाद महंगाई की शरह में कमी रिकॉर्ड। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.59% कमी हुई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की रिपोर्ट जारी। हफ्तावार महंगाई की सालाना शरह 4.18% पर आ गई।
और मुजफ्फरगढ़ में छांगा मांगा के टीलों पर 4 रोज़ा थल जीप रैली। दूसरे रोज़ क्वालिफाइंग राउंड के प्रीपेयर्ड कैटेगरी फैसल शादी खेल ने जीत ली। फैसल शादी खेल ने 3 किलोमीटर का ट्रैक 1 मिनट 30 सेकंड में तय किया। खवातीन प्रीपेयर्ड कैटेगरी में सलमा खान ने फासला 1 मिनट 57 सेकंड में तय करके मुकाबला अपने नाम किया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।